Good morning, everyone. Hope you're doing good. I will deliver the lecture on electrical power 1, and my topic is sources of energy. First topic is sources of energy. So, firstly, we know that about energy. Energy, the capacity for doing work, it may exist in potential, kinetic, thermal, electrical, chemical, nuclear, or other various forms. There are moreover heat and work, that is, energy in the process of transfer from one body to another. Simply, energy is the ability to do work. Energy is how things change and move. It's everywhere around us and takes all sort of forms. It takes energy to cook food, to drive to school, and to jump in the air. That's why this is called as energy. I will repeat again. Energy is the ability to do work. Energy is how things change and move. Like it takes energy to cook food, to drive to school, etc. So simply we call energy is ability to do work. Types of energy. There are two types of energy: conventional energy sources and non conventional energy sources. So, firstly, we discuss about conventional energy sources. Here, graphical representation, sources of energy, and there are two parts: conventional sources and non conventional sources. Also, the conventional sources are also, there are two types: commercial and non commercial. So that commercial have three examples and non-commercial have also three examples, and non-conventional sources are also some examples. So that we will discuss about firstly conventional sources. Conventional sources, when we cannot reuse a source of energy after using it once, we call them conventional sources of energy. सिंपली अगर हम कहें कि अगर हम किसी भी चीज़ को रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, एक बार करने के दोबारा हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइक द टर्म कन्वेंशनल मीन्स नॉट अनयूजुअल और एक्सट्रीम और ऑर्डिनरी, जिसको हम फिर से यूज़ नहीं करते हैं, उस सोर्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज. इसकी एग्जांपल्स हो गई कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. ये सारी की सारी एग्जांपल्स हो गई नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कमर्शियल सोर्सेज के बारे में. कन्वेंशनल सोर्सेज में कमर्शियल सोर्सेज हैं. फर्स्ट टाइप है इसकी कोल. कोल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स, अ सॉलिड कार्बन rich material that is usually brown or black and most often occur in stratified sedimentary deposits. अब इसमें सिंपली उन्होंने बोला हुआ जो कोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है फॉसिल फ्यूल्स में. कोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है फॉसिल फ्यूल्स में. कोल जो होता है वो एक हार्ड रॉक होती है जिसको हम
बर्न कर सकते हैं एज ए सॉलिड फॉसिल फ्यूल. It is mostly carbon but also contain hydrogen, sulfur, oxygen and also nitrogen. It is sedimentary rock formed from peat. It is a sedimentary rock formed from a peat. And peat, what is peat? पीट जो है एक ब्राउन कलर की सॉइल होती है. अब ब्राउन कलर की एक रिजेंबलिंग सॉइल होती है जो वेजिटेबल मैटर में उसको डिकम्पोज किया जाता है. वेजिटेबल के मैटर में उसको हम डिकम्पोज करते हैं, वो होती है पीट. तो कोल के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो कोल क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि फॉर्म होती है पीट से. ठीक है. तो कोल के बारे में क्या पढ़ा है कि कोल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है. कोल जो है वो एक ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होता है. ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक. कॉल्स में देर आर 4 ग्रेड्स ऑफ कॉल. कॉल्स में 4 तरह के ग्रेड्स होते हैं. लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस, बिटुमिनियस कॉयल, एंथ्रासाइट. Bituminous coal is the best for releasing energy and is most commonly mined type of coal. Bituminous जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है टाइप्स में से. सो सबसे पहले हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं. तो एंथ्रासाइट जो है वो एक मतलब कि उसको हम बोलते हैं कि हाई लेवल पे कॉल है जो माना जाता है. इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन जो होता है वो 94 से 98% तक पाई जाती है. एंथ्रासाइट में जो कार्बन है वो 94 से 98% तक पाई जाती है. ये शाइन बहुत करता है. ये ब्लैक कलर का होता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है. इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? घरों में यूज़ करते हैं. घरों में यूज़ कर सकते हैं इसको हम. बिटुमिनस क्या होता है? बिटुमिनस एक इसको भी ये भी हाई लेवल का एक कोल होता है जिसमें 78 से 86% तक जो है वो कोल पाई जाती है इसमें. ये इसमें ना एक रॉक पाया जाता है. ये एक रॉक होती है, रॉक एक चट्टान होती है जो ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर की होती है. आगे हम पढ़ते हैं लिग्नाइट के बारे में. लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट एक ब्राउन कलर का एक रॉक होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है. इसमें जो कार्बन जो है वो 28 से 30% तक पाया जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. सो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में. पेट्रोलियम के बारे में. पेट्रोलियम क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ natural occurring hydrocarbon of various molecular weight and may contain miscellaneous organic compounds. इसका मीनिंग है कि इसमें जो है कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं और जो इसमें नेक्स्ट लाइन उन्होंने बोली है कि एंड वेरियस मोलिकुलर वेट्स एंड मे कंटेन मिसलेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड. और काफ़ी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं. द नेम पेट्रोलियम कवर बोथ नेचुरली अकरिंग अनप्रोसेस्ड क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो कच्चे तेल होते हैं और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को या प्रोड्यूस करने के लिए जो क्रूड ऑयल है उसको इसमें ऐड ऑन किया जाता है जिससे हमारा कच्चा तेल बनता है, जो कच्चे तेल से बने होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट उन्होंने बोला एज अ फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स मोस्टली जूप्लैंक्टन एंड एल्गी. इसमें बोला गया है जो फॉसिल फ्यूल है
जो fossil fuel petroleum is formed when large quantities of dead organism, mostly zooplankton and algae, are buried underneath. ये बोल रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये कब बनता है, जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जू प्लैंकटन नाम के और एल्गाई नाम के जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी चट्टान के नीचे, किसी रॉक के नीचे, सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब जाते हैं, तब जो पेट्रोलियम है वो बनता है ज़्यादा क्वांटिटी में. Now we will discuss about the third type is electricity. Electricity is a common source of energy and used for domestic and commercial purposes. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए कॉमन चीज़ है एंड कहाँ यूज़ किया जाता है, ये डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाती है. द इलेक्ट्रिसिटी इज़ मेनली यूटिलाइज्ड इन एनर्जी अप्लाइंसेस लाइक फ्रिज, टीवी, machine and air conditioning. The major source of power generation are mentioned below, like first is nuclear power, second thermal power, and third is hydroelectric power. So what exactly is electricity? Electricity is the presence and flow of electric charge. Using electricity we can transfer energy in ways that allows us to do simple chores. Its best known form is the flow of electrons through conductors such as copper wires. So that the word electricity is sometimes used to mean electrical energy. This is exactly is electricity. So next is non-commercial energy sources. Generally, the energy sources that are freely available are considered non-commercial energy sources. The example of non-commercial energy sources are straw, dried dung, firewood. Thank you so much for the first lecture. Thank you.